So next topic is solution of differential equations. So the Laplace transform, this is the application of a Laplace transform. That where we can use the Laplace transform. So the Laplace transform is also used to solve the differential equations. And in this initial condition is also given to you along with the differential equation. For this, we will recall one theorem that we have already done, that is differentiation theorem. In this, we will use a differentiation theorem. Differentiation theorem of Laplace transform. It is used in differential equations. So, according to the differentiation theorem, that if x of t, the Laplace transform of x of t is x of s, we know this thing. But if we differentiate it, then d by dt of x of t, if we differentiate x of t, then its Laplace transform would be s into x of s, this thing we have done, minus the initial condition, minus x0 negative indicates the initial condition. So we will use this thing. We have already discussed this property कि अगर आपका सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन हो, सपोज इट इज डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर एक्स टी, तो ये आपका एस स्क्वायर एक्स एस से स्टार्ट होगा. यही किया था हमने, एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस ये आगे आ जाएगा आपका नेक्स्ट एस इंटू एक्स ऑफ जीरो नेगेटिव. ये जब हम क्वेश्चन करेंगे सेकेंड ऑर्डर का, देन वी विल डिस्कस. नाउ we will use this property, that is differentiation theorem. So आपको क्वेश्चन गिवन कैसे होगा? आपको क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व द डिफरेंशिएशन इक्वेशन. एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपकी ऐसे होगी कि क्वेश्चन में आपको गिवन है डी वाई टी वाई डी टी प्लस 5yt इज इक्वल टू एक्स टी. ये आपको इक्वेशन गिवन होगी एंड आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी साथ में, like with initial condition y0 positive is equal to minus 2 and input is given, that is xt is equal to 3 into e raised to power minus 2t ut. आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा that you have to solve this differentiation equation एंड इनिशियल कंडीशन आपको ये गिवन है y0 पॉजिटिव या फिर y0 नेगेटिव, इट इज सेम. दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड आपको एक इनपुट गिवन है xt. इन दिस केस yt इज द आउटपुट एंड xt is the input. So we will solve it using the Laplace transform because we can solve differentiation equations using Laplace transform. So we will start it with taking the Laplace transform of this given equation. So can you tell me what is the Laplace transform of this dyt by dt? इसका Laplace transform क्या आएगा? Because it's very difficult to solve this equation in time domain. So what we are going to do, we will take the Laplace transform of this. So just tell me what is the Laplace transform of this dyt by dt? Yes, try it. It is in the form of differentiation. अगर आपको differentiation की form में है, then we will use the differentiation theorem of Laplace transform. हम यही थ्योरम यूज करेंगे. ये यहाँ आपका xt भी हो सकता है, yt भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो आपके किसी भी सिग्नल की डिफरेंशिएशन हो सकती है. Here the differentiation, here we have taken the differentiation of yt. तो अगर d by dt of yt है तो ये किसके इक्वल होगा? s इंटू एक्सेस नहीं आएगा, अब इस केस में आपका y इंटू एस आ जाएगा बिकॉज हेयर इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ yt. s इंटू वाई एस माइनस y ऑफ 0 माइनस, इट इंडिकेट्स द इनिशियल कंडीशन. ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल वैल्यू की इनिशियली वैल्यू क्या थी. सो dy
टी बाई डी टी का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, एस इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो नेगेटिव। ये इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ गया सिर्फ इस पार्ट का, इतने पार्ट का, प्लस 5yt है। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम कैसे लिखेंगे, y ऑफ t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, y ऑफ t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, अगर x ऑफ t का हम मैम x ऑफ s लिखते थे, यस, y ऑफ t का क्या लिखेंगे, y of x। यस इट इज रिटन एज y ऑफ s। अच्छा, फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है, y ऑफ t, z ऑफ t, कुछ भी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम हमेशा x ऑफ t से ही लेके चलते थे। तो इसका भी हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिख दिया। नाउ कमिंग टू दिस साइड, x ऑफ t, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, x ऑफ t x का of लैप x। s। तो हमने क्या करना है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड जो भी आपको फंक्शंस गिवन है सबका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिख लेना है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें यही था, जो डिफरेंट चीज थी कि अगर आपको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है तो आपने उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे लिखना है, यूजिंग द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। हियर वी हैव यूज्ड द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। Just wait 1 second. So, we have written it in the form of Laplace transform. Now it is very easy to solve this equation. अब हमने इसे Laplace transform की फॉर्म में लिख लिया। अब हम अगर इसका, हमें इनिशियल कंडीशन पता है, y ऑफ जीरो नेगेटिव हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज इक्वल टू -2। हम ये यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। सो इट इज s इंटू वाई ऑफ s माइनस वाई ऑफ जीरो नेगेटिव प्लस y ऑफ वाई एस इज इक्वल टू x ऑफ s। ये इक्वेशन थी, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपकी आ जाएगी s वाई एस, ये आपको -2 गिवन था तो ये +2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5y ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s। अब हमने इसे फर्दर सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो आपकी इक्वेशन आई, अब हमें ये पता है कि किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है। वी नो कि अगर e ऑफ ए टी है तो उसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, आपको क्वेश्चन में गिवन था x ऑफ t, एंड x ऑफ t आपका किसके इक्वल है, सो इट इज x ऑफ t इज इक्वल टू 3 इंटू e रेज टू पावर -2t u ऑफ t। xt आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, तो हमने xt का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या लिया, x ऑफ s। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, e रेज टू पावर -2t ut। इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या क्या आएगा आपका, 1/a² प्लस 2 यस इट स्क्वायर। इज 1s प्लस 2, ये आ गया। तो जहां हमने x ऑफ s लिखा था, देयर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, बिकॉज क्वेश्चन में आपको इनपुट की वैल्यू गिवन है, हमें yt की वैल्यू निकालनी है। हमने फाइंड क्या करना है, जब हमने डिफरेंशिएशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको xt की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू गिवन होगी, तो उसी इक्वेशन से हमने yt की वैल्यू निकालनी है। तो जो इजीएस्ट वे होता है कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है हम उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिख लें, एंड जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे xt की वैल्यू गिवन थी तो इसका x ऑफ s आ जाएगा, तो अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लोगे इट इज 1/s+2। तो ये चीज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपका s प्लस 5 इंटू वाई ऑफ s, वट आई हैव डन, मैंने y ऑफ s वाली टर्म्स एक साथ कंबाइन कर ली, एक यहाँ था एक यहाँ था आपका, तो ये s प्लस 5 इंटू वाई ऑफ s आ जाएगा। इट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ये आई थी तो मैं यहाँ इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दी, इट इज 3 इंटू s प्लस 2। अब यहाँ +2 था, इसे मैं इस साइड लेगी, दैट इज -2।
अब अगर आप देखो तो ये आपकी इक्वेशन कुछ वैसी बन जाएगी, y ऑफ s इज इक्वल टू 3 इंटू s प्लस 2 s प्लस 5, s प्लस 5 भी मैं इस साइड लेगी, -2 बाई s प्लस 5। इसे अगर आप देखोगे तो ये आपकी इक्वेशन उसी पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में आ गई जैसे हम पहले सॉल्व करते थे, जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये इस फॉर्म में आ गया आपका ये। सो यूजिंग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम y ऑफ s को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, y ऑफ t में, बिकॉज हमने y ऑफ t की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जब आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें हमने वैल्यू y ऑफ t की ही फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको इस फॉर्म में आपका ये आ गया। नाउ यूजिंग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ t। मीन्स इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सपैंड करेंगे और इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है इस पार्ट की। इस पार्ट की तो आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज यू डायरेक्टली नो द वैल्यू। हमने सॉल्व किस चीज को करना है, इस चीज को। तो ये आ जाएगा a अपॉन एस प्लस 2, जैसे हम वैसे ही सॉल्व करते थे, b अपॉन एस प्लस 5, राइट। ये आ जाएगा आपका। अगर आप 3 को कॉमन भी लेना चाहते हो कि 3 आपका कॉमन आ गया, या फिर इसे सॉल्व करोगे, अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे a अपॉन एस प्लस 2 प्लस b अपॉन एस प्लस 5, ये आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे जैसे हमने पहले किया था, तो a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। a की वैल्यू आपकी, जब आप इसे सॉल्व करोगे, बच्चे मैं सॉल्व नहीं कर रही, आपने इसे वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसे हम 1 अपॉन एस प्लस 2 लिखेंगे। यस मैम, की 1 एंड आ रही है। b की वैल्यू -1 आएगी, ये कर लो, इट इज -1 अपॉन एस प्लस 5, वो हमने यहाँ पुट कर दी। और नेक्स्ट आपका ये आपको ऑलरेडी है, इसे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज इसका हमें लैपलेस डायरेक्टली पता है, -2 अपॉन एस प्लस 5। अब आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है, ये सिंप्लीफाई होके 1 अपॉन एस प्लस 2 -3 अपॉन एस प्लस 5 लिख सकते हैं हम इसे। एंड ये y ऑफ s का ये अभी s की फॉर्म में ही है। अब आपकी ये सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ गई। अब इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लो, y ऑफ s का क्या होगा, y ऑफ t, एक y ऑफ t एंड 1 अपॉन s प्लस 2, ये किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, e to the power -80 -80। अब a क्या है, इसमें 2 है, तो 2 आपने क्या पुट करना है, e रेज टू पावर -2t ut, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये आ गया। ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 3 भी एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन एस प्लस 5 किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, e to the यहाँ power -5t yes ut. 5t ut, so this is your final answer. So in this way we can solve a given differential equation। अगर आपको differential equation given है कि इस फॉर्म में, then first you have to start with कि आपने सबका Laplace transform लिखना है। जैसे dy t by dt का Laplace transform लिखा, yt का y of s, xt का x of s। जो आपको क्वेश्चंस में गिवन थी, xt की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन थी, तो आपने उसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म की फॉर्म, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। ये टाइम डोमेन में था, हमने इसे एस डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। आफ्टर दैट इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट किया एंड हमने अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना है, वाई टी की वैल्यू। तो उसके लिए हमने वाई ऑफ एस को एक लेफ्ट साइड लिखा, बाकी सारे वेरिएबल्स एक साथ लिए और उसका उसे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन उसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लिया, बिकॉज फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई टी। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक मैं एग्जांपल आपको और दे देती हूँ, हम पूरा इसे सॉल्व नहीं करेंगे, बट अगर आपको इस फॉर्म में गिवन हो, क्वेश्चन में आपको दो ही फॉर्म्स में गिवन होता है, एक डी वाई टी वाई डी टी, और मैक्सिमम आपको सेकेंड ऑर्डर तक होता है, दैट इज डी स्क्वायर वाई टी या डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई टी बाई डी टी, इट इज 4 टाइम्स
प्लस 5y ऑफ टी इज इक्वल टू 5x ऑफ टी। आपको इस फॉर्म में अगर गिवन है क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आपको ये भी गिवन है कि इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 नेगेटिव इज 1, एंड एक आपको और गिवन है dy t by dt, it is means ये initial condition is 2, and input x of t is given to you as u of t। जो इनपुट है वो आपका ut है। सो आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन है अगर, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके लिए हम सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे कि हम सबका लैपलेस ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। कि अगर जैसे आपका ये था, तो अब इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपने कैसे लिखना है? वी नो कि हमने dy t by dt का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है y ऑफ s इंटू y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 नेगेटिव इनिशियल कंडीशन। ये इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है dy t by dt। अगर आपके सेकेंड ऑर्डर हो d स्क्वायर y t by dt स्क्वायर, तो इसका अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिखना है वो आ जाएगा स्क्वायर्ड आपका एक्सेस s स्क्वायर माइनस y s एस एक्सेस नहीं एक्स टू बच्चे, इट पावर इज इन टी। द फॉर्म ऑफ y, सो सॉरी। इट इज s स्क्वायर y s माइनस s इंटू y ऑफ 0 नेगेटिव, ये इनिशियल कंडीशन, माइनस dy t बाई dt भी लिखना है आपने, एट मीन्स ये इनिशियल कंडीशन। तो अगर इस फॉर्म में है तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म इतना आएगा। ये गिवन है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, तो आपको मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर तक ही आता है यहां तक। तो अगर इस फॉर्म में है तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपने ऐसे लिखना है एस स्क्वायर वाई एस। तो ये कंप्लीट इक्वेशन कैसे आ जाएगी? एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस इंटू वाई 0 नेगेटिव माइनस डी वाई बाई डी टी एंड वैल्यू एट 0 नेगेटिव, एंड ये वैल्यू आपको क्वेश्चंस में गिवन है, ये भी गिवन है, y 0 नेगेटिव की वैल्यू भी 1 आपको गिवन है, ये आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है ये वैल्यूज। ऐसा नहीं कि फिर आप इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिख रहे हो, ये नहीं, ये आपको 0 इनिशियल कंडीशन गिवन है, ये आपको, ये इसका आ गया लैपलेस ट्रांसफॉर्म प्लस 4 टाइम्स ऑफ डी बाई टी बाई डी टी, ये 4 इंटू ये आ जाएगा s इंटू वाई ऑफ s माइनस y ऑफ 0 नेगेटिव। इसकी वैल्यू भी हमें पता है y ऑफ 0 नेगेटिव की वैल्यू, ये भी आपको यहाँ गिवन है, वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपने, प्लस 5yt, yt का y ऑफ s आ जाएगा इज इक्वल टू 5xt, xt का x ऑफ s। ये इन दिस वे हम इसको लैपलेस ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन को। एंड xt का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या है? x ऑफ s, एंड ut का का लैपलेस एक्स टी मैम। ट्रांसफॉर्म 1 बाय s, इट इज 1 बाय s। ut का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है यस मैम, आपका 1 1 बाई बाय s। तो जो यहाँ 1 बाय s है आपका, वो यहाँ 5 इंटू 1 बाय s यहाँ पुट कर दो, एंड y ऑफ s वाली टर्म्स एक साथ लिख लो, एंड वहां से आपने क्या फाइंड आउट कर लेना, y ऑफ t हो जाएगा ये। बस इसमें यहाँ डिफरेंस था आपका, थोड़ा सा डिफरेंट थी यहाँ, तो उसका आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऐसे लिखना है। ये क्लियर है? यस मैम। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।